Hey friends, welcome back to Robinhood Competitive Classes. So I'm back once again with a new video, and today I am going to discuss with you very important multiple choice questions from the previous year question papers of JKSSB on subject science. So in science we are going to discuss questions from bio and from physics, from chemistry too. So among journal science, biology is most important, and recent analysis shows that questions asked in examinations required understanding of day-to-day science. And in physics and chemistry, the application part is the most important part for all the exams and from the exam point of view. So we should have basic understanding of laws and definitions in chemistry and physics. So guys, let's start today's video. So the first multiple choice question, which is the outermost layer of skin is called. जो हमारी outermost layer है skin की, उसे हम क्या कहते हैं? So the outermost layer of skin is called epidermis. So हमारी जो skin की outer layer है, that is epidermis. The other three options are endodermis, dermis and hypodermis. So out of these four, the correct option is epidermis. So next question is, what is an enzyme? So एक enzyme क्या है? Is it a biocatalyst? Is it a hormone? Is it a gland? Or fourth option is none of these. So जो enzyme है, that is biocatalyst. So correct option is A. So next is exact replica of chromosome refers to. Exact replica means जो बिल्कुल उसके एक मतलब समान है, समानता, same. So that is chromatid. So exact replica of chromosome refers to chromatid. The other three options are centromere, kinetochore and arms. So we have to tick the correct option A, chromatid. So next question is segmented worms take breathe through. जैसे हम सांस लेते हैं through lungs, so जो segmented worms होती हैं वो कहाँ से breathe करती हैं? So they use their moist skin to breathe. So the correct option is part C, that is moist skin. And the other three options that are mouth, nose and head are incorrect. So go with the third option, moist skin. So next is 7 secretions are products formed within cell on. In 4 parts में से मीन्स कौन सा ऐसा जो है जिसमें 7 secretion के products form होते हैं? And the correct option is second, and that is Golgi bodies. जो Golgi bodies होती हैं उनके अंदर 7 secretions जो हैं products formed होते हैं. So next is unseparated replica of chromosome is called. जो separate नहीं होता means unseparated जो part है chromosome का उसे हम क्या कहते हैं? Chromatid. And the correct option is C. The other three options, chromatin, kinetochore and centromere are incorrect, and the correct option is C, that is chromatid. So next is the innate tendency of offspring to resemble their parents is known as. जब ये कहा जाता है कि ये लड़की बिल्कुल अपने मम्मा की जैसी दिखती हैं और कभी हम ये कहते हैं कि ये लड़का अपने पापा जैसा दिखता है, सो ये जो हमारी innate tendency होती है resemblance की, मीन्स जो मैच करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग्स, सो ये किस वजह से होता है? The 4 options are heredity, hereditary, variation और none. And the correct option is ये heredity की वजह से होता है जो हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं. So the correct option here is A part. And next question is under a compound microscope chromosome is made up of. जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर एक क्रोमोसोम को देखते हैं सो हमें उस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखता है? हमें क्रोमोसोम की आर्म्स दिखती हैं एंड उसके साथ हमें एक और चीज़ दिखती है. व्हाट इज़ दैट पार्ट कॉल्ड? सो द 4 ऑप्शंस आर सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम, क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रोमेयर. द पार्ट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग इन लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल्स. सो सेल्स के अंदर जब लिक्विड मटेरियल जाता है उस प्रोसेस को मीन्स उसे क्या कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और बोथ A and B. So here the correct option is B, and that is pinocytosis. So pinocytosis is the process of taking in liquid material into the cell.
And next question is the process involved in inflammation of is called, means ऐसा प्रोसेस जो इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहा जाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज apoptosis, next is necrosis, third is both A and B part, and D is non-disjunction. So here the process involved in inflammation of is called necrosis. So the correct option is part B. Let's move forward. So next question is how many years after the diagnosis of HIV/AIDS will a person die? Means जब एक पर्सन के अंदर ये पाया जाता है कि ये इंसान HIV पॉजिटिव है, मीन्स उसे एड्स है, तो वो जब डायग्नोस होता है उसका ये डिजीज़, तो उसके कितने टाइम स्पैन के बाद वो इंसान जो है मीन्स वो उनकी डेथ हो जाती है. सो कितने साल लगते हैं जब इस बीमारी के बारे में पता चलता है और डेथ इंसान जो है मीन्स वो उनकी डेथ हो जाती है. सो कितने साल लगते हैं जब इस बीमारी के बारे में पता चलता है और डेथ में तो डेथ हमें उस इंसान की हो जाती है 2 years के बाद. करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 years. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आपको याद रखनी चाहिए. सो मे बी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Next question is which female mosquito is the cause of dengue fever? And this is also a very very important question. Mostly exams में, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स ले लीजिए, बैंकिंग का और JK SSB का, ये क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है. सो फीमेल मॉस्किटो जो डेंगू फीवर कॉज करती हैं उनका नाम क्या है? सो फीमेल मॉस्किटो, सो एन्फोलीज जो हैं वो भी फीमेल मॉस्किटो है, एडीज जो है वो भी फीमेल मॉस्किटो है, बैरिनोहिल्स है, दीज ऑल आर द फीमेल मॉस्किटोज. बट मीन्स हमें कौन सी कैटेगरी को टिक करना है जो बेसिकली रीज़न है डेंगू फीवर के लिए. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ एडीज एजिप्टी. सो एडीज एजिप्टी इज़ द फीमेल मॉस्किटो विच इज़ द कॉज ऑफ डेंगू फीवर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेपेटाइटिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच ऑर्गन? आपने इस बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा हेपेटाइटिस, एंड देयर आर द पार्ट्स ऑफ हेपेटाइटिस, दैट इज़ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी. सो मेनली आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये बीमारी कौन से ऑर्गन से रिलेट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, एंड हेपेटाइटिस डिजीज़ इज़ द डिजीज़ ऑफ ऑर्गन लीवर. सो ये लीवर की डिजीज़ है हेपेटाइटिस. The other 3 options heart, lungs and brain are incorrect. So next question is abiogenesis means. Abiogenesis का मतलब यहाँ पे क्या है? First option is living things originated from bacteria or microbionts or non-living things, or D option is none of these. So here the correct option is non-living things. Abiogenesis means non-living things. Let's move forward. Next question is the horizontal rows of the periodic table are called. So this question is from chemistry. Chemistry part से ये question लिया गया है कि जो horizontal rows होती हैं periodic table के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, क्या उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, क्या उन्हें हम सेट्स कहते हैं, या मैट्रिसेस कहते हैं? सो जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल की उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स. सो द पार्ट B is the correct option for this question. So next question is which metallic element is liquid at room temperature? Room temperature पे एक ही element है जो हमें means liquid form में मिलता है, एक ही element, and that is mercury. I think 99% of students know about it. एंड जो 1% जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज पता चल जाएगा कि मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. द अदर 3 ऑप्शन जिंक, निकल एंड लेड आर इनकरेक्ट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर वेपर इज. यहाँ पे मतलब है कि वाटर वेपर क्या है? इज इट अ क्लाउड ड्रॉपलेट, इज इट अ गैस, इज इट अ रेन ड्रॉप और इज इट अ स्नोफ्लेक? सो द करेक्ट ऑप्शन इज जो वाटर वेपर है ये एक गैस है. जब हम पानी बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग के बाद जो मीन्स भाप बनकर इवेपोरेट हो जाता है पार्ट, उन्हें हम वाटर वेपर्स कहते हैं. सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड. सो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है. इन द ऑप्शंस आर ऑस्मोसिस, डेलिक्वेंसेंस, एफ्लोरेसेंस और डेसिकेशन. सो इन 4 में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है एयर से?
जब हम उसे एक्सपोजर देते हैं. मीन्स ऑन एक्सपोजर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डेलिक्वेसेंस. So next question is the fraction of petroleum having boiling range of 40 to 200 degree Celsius is called. मीन्स पेट्रोलियम का एक ऐसा फ्रैक्शन जिसे इस बॉइलिंग रेंज में मीन्स 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में बॉईल किया जाता है. एंड व्हाट इज़ दैट कॉल्ड. सो जब पेट्रोलियम को बॉईल किया जाता है दैट फॉर्म्स द गैसोलीन. सो पार्ट बी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड जो गैसोलीन है वो जो हम घर पे वैसलीन्स यूज़ करते हैं, गैसोलीन उसमें भी यूज़ होता है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर गैसोलीन इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मिंग पेट्रोलियम जेलीज. Just like example are Vaseline. So the other three options kerosene, petroleum, ether and none of the above are the correct incorrect answers. So correct is gasoline. So next is which of the following metal occurs in free state. So यहाँ पे 4 metal के नाम दिए गए हैं. First is lead, second is iron, third is mercury and fourth is copper. So इनमें से कौन सा ऐसा metal है जो free state में पाया जाता है. And the correct option is lead. The first part जो है A part lead, यही इसका करेक्ट आंसर है. लेड जो है हमें फ्री स्टेट में मिलता है. सो नेक्स्ट इज मैग्नेलियम इज़ एन एलॉय ऑफ. यहाँ पे आपको पेयर्स में एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं. जैसे फर्स्ट इज मैग्नीशियम एंड लेड, सेकेंड इज एल्युमिनियम एंड जिंक, थर्ड इज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड फोर्थ पार्ट इज एल्युमिनियम एंड मरकरी. सो इन चारों में से करेक्ट आंसर है. अब वर्ड देखिए मैग्नेलियम, इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं MAGN यूज़ हुआ है. सो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MAGN मीन्स मैग्नीशियम. सो मीन्स इस पूरे वर्ड में मैग्नीशियम तो एक एलिमेंट हो गया. अब जो उसका अदर पार्ट है वो हमें सोचना है कि और कौन सा हो सकता है. सो जस्ट गेस कि लास्ट में जो बचता है ALIUM, सो दैट मीन्स एल्युमिनियम. सिंपली मैग्नेलियम मीन्स मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम. सो M, so that means aluminium. Simply magnesium means magnesium and aluminium. So correct answer is C. So the other A, B and D part are incorrect. So next question is which element does not occur in nature but can be produced artificially. So यहाँ पे 4 एलिमेंट्स के नाम दिए हैं. दैट इज़ प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम एंड थोरियम. मेनली कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं बट कुछ आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं. सो इन 4 में से आर्टिफिशियल जो एलिमेंट है जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द A, दैट इज़ प्लूटोनियम. So the options B, C and D are incorrect. The correct option is A. So the next question is galvanized iron sheets have a coating of. जो हमारी आयरन शीट्स होती हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी कभी यूज़ करते हैं. मींस उनके ऊपर एक शाइनिंग सा कुछ हमें मींस अपीयरेंस होता है, शाइनिंग सा कुछ. तो वो गैल्वेनाइज्ड जो आयरन शीट्स होते हैं उनके ऊपर किसकी कोटिंग की गई होती है. ऑप्शंस आर टिन, सिल्वर, जिंक और क्रोमियम. सो द करेक्ट आंसर इज जिंक. सो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैं उनके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है. सो द अदर ऑप्शंस टिन, सिल्वर, क्रोमियम आर इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरकरी इज ऑल्सो नोन एज. मरकरी को और किस नाम से जाना जाता है. एंड द ऑप्शंस आर शाइन सिल्वर, सेकेंड इज क्विक सिल्वर, थर्ड इज स्लो सिल्वर और फोर्थ इज स्लिपरी सिल्वर. सो जो मरकरी है उसे हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं. सो मरकरी इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर. So next is mercury is also known as. So this is the repeat of the last question. So next question is dash contains the green chemical called chlorophyll. 4 यहाँ पे options आपके पास हैं. साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल. सो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम ग्रीन केमिकल कहते हैं, मींस क्लोरोफिल कहा जाता है. यहाँ पे हम केमिकल की जगह पे एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ पिगमेंट. सो द ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है वो किस मतलब डैश कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सो क्लोरोप्लास्ट में रहता है वो क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल. सो विच प्रोवाइड्स द ग्रीन कलर टू प्लांट्स. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि प्लांट्स का कलर जो हमें शो होता है वो ग्रीन क्यों होता है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. सो जो जिनके अंदर ये नहीं होता है वो ग्रीन आपको नहीं दिखेंगे. सो नेक्स्ट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस.
सो एक गैस है जिसे हम लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड. सो इन 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है मीन्स लॉफिंग गैस कौन सी गैस है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. So the option D is the correct answer and A, B, C are incorrect. So next is what is the freezing point of water? Means ऐसे कौन सा point है जब water जो है freeze हो जाता है, and that is 0 degree centigrade Celsius. So 0 degree Celsius पे जो water है freeze हो जाता है. और अगर boiling point पूछा जाए यहाँ पे, so boiling point of water is 100 degree Celsius. So next is microphone converts sound energy into. So now we are moving towards the physics part. So this is the equation from physics. Microphone जो हैं वो convert करते हैं sound energy को किस energy में? So the 4 options are microwaves, second is electrical signals, third is optical signals और heat energy. So correct answer here is microphone converts sound energy into electrical signals. वो उसे electrical signals में change करते हैं. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और फुट कैंडल. सो जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर, दीज आर यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. बट जो 4th पार्ट है दैट इज़ फुट कैंडल, दैट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. सो यहाँ पे आपको डी पार्ट को टिक करना है. सो नेक्स्ट इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट अमंग द 8 planets. So 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are the names of 8 planets. So इसमें इन 8 planets में सबसे जो brightest planet है, सबसे bright जो है that is Venus. So which is the second planet? First is Mercury, second is Venus. So Venus जो है second planet हमारा, वो brightest planet भी उसे हम कहते हैं. So next question is who discovered the gamma rays? So gamma rays किन्होंने डिस्कवर किया है? यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल विलार्ड और बोहर और जबर बिन हायान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज पॉल विलियार्ड. सो आपको ये पता होना चाहिए गामा रेज किन्होंने डिस्कवर की हैं. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ए, सी, डी आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस. सो नेक्स्ट let's move towards the next question which is the strongest part of magnet. magnet में poles होते हैं, that is north pole and south pole. so यहाँ पे ये पूछा गया है कि strongest part कौन सा है, बट यहाँ पे हम आपको बता दें कि दोनों जो parts हैं north and south pole दोनों को ही हम strongest part बोल सकते हैं magnet के. मीन्स दोनों में कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट करने की. सो यहाँ पे ना ए आएगा ना बी आएगा और ना ही ये बोल सकते हैं मीडियन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैग्नेट एंड दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउड स्पीकर चेंजेस डैश एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. सो लास्ट क्वेश्चंस में हमने हेडफोन्स के बारे में बात किया था कि जो हेडफोन्स है वो चेंज करते हैं कौन सी एनर्जी को, बारे में बात किया था कि जो हेडफोन्स है वो चेंज करते हैं कौन सी एनर्जी को, मतलब कौन सी एनर्जी में. वहाँ पे हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था. यहाँ पे हम लाउड स्पीकर्स की बात कर रहे हैं. सो लाउड स्पीकर कौन सी एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है. सो ऑप्शंस आर केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट और काइनेटिक. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी. जो लाउड स्पीकर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं साउंड एनर्जी में. सो ए, सी एंड डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पे उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, वाटर, आयरन, कॉपर, वुड और वुड, कॉपर, आयरन, वाटर. दीज आर द 4 ऑप्शंस. और यहाँ पे इन्होंने हमें लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला है, मीन्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक जो है पास नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे ऑप्शंस, अब कॉपर, आयरन, वाटर जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शंस है. करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए पार्ट, दैट इज़ वुड. सो यहाँ पे वुड जो है लीस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट स्टेज ऑफ स्टार सन. मीन्स जो हमारा सन है ये भी एक स्टार है, तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उन्हें भी हम स्टार्स कहकर बुला सकते हैं. ये वो वाले स्टार्स नहीं हैं जो हमें नाइट में दिखते हैं, दैट आर द स्टार्स, लेकिन हम सन, मून इन्हें भी स्टार कहकर बुलाते हैं. सो इस एट प्रेजेंट मीन्स अभी के टाइम में जो करंट स्टेज है हमारे सन की, उसे हम कौन सी स्टेज कहते हैं, वो कौन सी स्टेज है. यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, वाइट ड्वार्फ, रेड जेंट, येलो ड्वार्फ
और ऑरेंज ड्वार्फ? सो करेक्ट आंसर इज, आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ये क्वेश्चन पहले नहीं सुना होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टार सन की करेक्ट स्टेज जो है वो है येलो ड्वार्फ। सो पार्ट सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड ए, बी एंड डी आर द इनकरेक्ट आंसर्स। सो नेक्स्ट इज MOSFET, हम इसे मॉसफेट भी कह सकते हैं। सो मॉसफेट स्टैंड्स फॉर, मीन्स आपको ये पूछ सकते हैं वो कि इसका फुल फॉर्म बताइए। सो इसका फुल फॉर्म जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं आपको अभी करेक्ट आंसर ही आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है इसका पार्ट ए, एंड दैट इज M मीन्स मेटल, O स्टैंड्स फॉर ऑक्साइड, S स्टैंड्स फॉर सेमीकंडक्टर, F स्टैंड्स फॉर फील्ड, E स्टैंड्स फॉर इफेक्ट and T stands for transistor. So it makes metal oxide semiconductor field effect transistor. So MOSFET stands for part A, and B, C and D are the incorrect options. So next is spectrum is made up of dash colors. जो spectrum रहता है, spectrum होता है मतलब उसमें कितने कलर्स शो होते हैं, वो कितने कलर्स से बना हुआ है, 7, 8, 6 और 9। सो द करेक्ट आंसर इज 7। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम विब गॉयर भी कहते हैं, वैसे ही स्पेक्ट्रम भी 7 कलर्स से बना हुआ है। So friends, that was all for today's video. So today we discussed the very most important जो questions हैं। मैंने ये सब questions बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर से कलेक्ट करे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँ और आपके साथ कुछ और questions डिस्कस करूँ, so please for that comment on our video and don't forget to subscribe our channel, that is Robinhood Competitive Classes, and please guys keep supporting and watch our videos, share our videos, and please stay tuned with us. And if you had not clicked the notification icon, so click it, click that bell icon so that you may get the latest updates from our channel. So guys, thank you so much for supporting us. So thank you guys, bye.